Hello, my dear students. I, Dr. Shikha Tiwari, welcome all of you in my channel E-Biology and Stuff. Today we are starting new topic in which we are going to cover amino acids, peptides, titration curve, protein structures, and this is the part 1 of the 4 lecture series which you are going to get on these topics. So let's start. आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे तो। और सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको आगे के इसी तरह के वीडियोस ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अमाइनो एसिड्स क्या हैं? दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन्स, यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कंबाइन होकर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। देयर आर टोटल 20 अमाइनो एसिड्स। उसमें से सबसे पहले वी फाउंड एस्पार्जिन इन 1806 एंड थ्रियोनिन वाज लास्ट डिस्कवर्ड इन 1938. सो इट टुक्स ऑलमोस्ट 132 ईयर to get all 20 amino acids. Now all amino acids have alpha carbon. What is this alpha carbon? Alpha carbon is the first carbon atom which have functional group like NH2 and this carboxylic acid, the first carbon atom having these functional groups. Afterwards these carbon atoms are counted as beta, then gamma, then delta, then epsilon, sigma, many are there. Okay, then all amino acids have 4 different functional groups except glycine. Now what are these 4 different functional groups? The first one is carboxylic group, then amino group, then hydrogen atom and R. Okay, these are the 4 functional groups except glycine. In glycine instead of R की जगह पर we have H यानी hydrogen atom, and the carbon atom which have 4 different functional group attached to it is known as chiral carbon atom. Okay, so the carbon atom which have 4 different functional group attached to it is known as chiral carbon atom. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 different functional group हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमाइनो ग्रुप है, आर ग्रुप है, एच है। आर क्या है? आर एलाइल ग्रुप है, यानी इधर पे कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकता है। Next is कि as all amino acids have 4 functional group, it is having chiral carbon atom, that means they are optically active and they have 2 possible stereoisomer which are mirror image of each other but non superimposable. You can see here कि they are mirror image of each other. Now L and D forms are there. What is the meaning of L and D forms? Means levorotatory and dextrorotatory? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर L और D फॉर्म का मतलब है कि पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, यानी आपका जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर वो कहाँ पोजीशनड है, जो है NH2 वो किस साइड में पोजीशन है, उसके हिसाब से इसको L और D डिफाइन किया गया है। इसको R और S कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं। नाउ all biological proteins have L type of amino acids except in bacterial cell wall and some antibiotics, यानी जितने भी biological प्रोटीन्स हैं उन सब में L टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स ही हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे बैक्टीरियल सेल वॉल और कुछ एंटीबायोटिक्स। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आर ग्रुप। तो अब अमाइनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ आर ग्रुप अटैच टू देम। दे आर नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप, पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप, एरोमेटिक आर ग्रुप, पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप एंड नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप. Now you can see here these all 20 amino acids have abbreviations and symbol. Abbreviations are the first 3 letters are abbreviation and symbol, the first letter is the symbol in most of the amino acids. Some are exception, those you need to remember. और वही मतलब आपको याद रखने हैं, वो exceptions मैंने green color से highlight किए हैं, जैसे एस्पार्जिन को N से, ग्लूटामिन को Q से, फिनाइल एलेनिन को F से, टायरोसिन को Y से, ट्रिप्टोफैन को W से, लाइसिन को K से, आर्जिनिन को R से, एस्पार्टेट को D से और ग्लूटामेट को E से. ये सिम्बल्स जो हैं वो उनके इनिशियल लेटर से नहीं है, कुछ डिफरेंट है, दोज यू हैव टू रिमेंबर.
नाउ द फर्स्ट क्लास इज नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी आर ग्रुप है, NH3 दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक दिख रहा है, हाइड्रोजन एटम दिख रहा है, उसके अलावा जो ग्रुप है वो हैं आर। आप ग्लाइसिन में देख सकते हैं कि जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो है H, तो H दो बार हो गया, यानी इसके चारों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग नहीं है, यानी इसका कार्बन एटम कायरल कार्बन एटम नहीं है। बाकी के जो अमाइनो एसिड्स हैं वो सारे आर ग्रुप्स जो हैं उनके वो डिफरेंट है, दे हैव कायरल कार्बन एटम। अब इसमें से जो प्रोलीन है, दैट प्रोलीन हैव कैपेसिटी टू गिव रिजिड कन्फर्मेशन टू प्रोटीन। क्यों? क्योंकि इसके पास एक फंक्शनल ग्रुप है इम्यूनो ग्रुप। ये जो इम्यूनो ग्रुप है आप देख सकते हैं कि NH2 और एक साइक्लिक टाइप ऑफ आर ग्रुप है, दैट इज़ इम्यूनो ग्रुप, और उस इम्यूनो ग्रुप की वजह से वो प्रोटीन्स को रिजिड कॉन्फर्मेशन यानी फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, मेथियोनिन जो है यहाँ पे उसमें कौन सा ग्रुप है? थायो ईथर ग्रुप, और वन ऑफ द सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, यानी टोटल 20 में से 2 सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं, उनमें से एक कौन सा है? मेथियोनिन, और अगला मैं अभी बताऊंगी। और जो आर ग्रुप्स हैं यहाँ पे ये सारे कैसे हैं? नॉन पोलर हैं और एलिफेटिक हैं। तो नॉन पोलर हैं यानी कि दे आर गोइंग टू मेक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक यानी वाटर नॉन लविंग, वाटर हेटिंग, यानी दे आर नॉट गोइंग टू बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द वाटर। नेक्स्ट इज पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप। अभी जो आर ग्रुप है यहाँ पर दीज आर पोलर, अभी जो थे वो नॉन पोलर थे, ये पोलर हैं लेकिन अनचार्ज्ड ग्रुप है, यानी इनमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है। और पोलर हैं तो दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, मीन्स दे कैन मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। अभी यहाँ आप देख सकते हैं पहले दो हैं सेरिन और थ्रियोनिन। ये सारी पिक्चर्स मैंने लेनिंजर बायोकेमिस्ट्री बुक से ली हैं, और इससे पहले की जो पिक्चर्स थी वो कैम स्केच सॉफ्टवेयर से ड्रॉ की थी। अगर आप चाहें तो इस सॉफ्टवेयर का भी मैं वीडियो ट्यूटोरियल जो है वो डाल सकती हूँ, अगर आप चाहें तो कमेंट में लिख कर दीजिए तो मैं ज़रूर आपके लिए ये करूँगी। तो सेरिन और थ्रियोनिन जो हैं दे हैव हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप यानी OH ग्रुप। सिस्टीन है सल्फर हाइड्रल ग्रुप। तो मिल गया हमें हमारा दूसरा सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, दैट इज सिस्टाइन। सिस्टीन एंड मेथियोनिन आर द 2 सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। एंड एस्पार्जिन ग्लूटामिन दे हैव अमाइड ग्रुप, दैट इज CONH2। अभी आपने बहुत बार देखा होगा कि सिस्टीन की स्पेलिंग CYSTEINE लिखी रहती है, कहीं कहीं CYSTINE लिखी रहती है। आर दे सेम और डिफरेंट? नो, दे आर डिफरेंट। CYSTEINE, दिस इज द सिंगल सिस्टीन अमाइनो एसिड, और CYSTINE दैट इज 2 सिस्टीन मॉलिक्यूल लिंक्ड बाय कोवलेंट बॉन्ड इज सिस्टाइन। ओके, सो serine, threonine, cysteine and asparagine glutamine are polar uncharged R group. Now positively charged R group. अभी यहाँ क्या है, जो R group है उनको कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। एग्जाम्पल लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। इसमें हमें याद रखना है कि इन तीनों के कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। यू कैन सी हियर लाइसिन में क्या है? प्राइमरी अमाइनो ग्रुप है। अभी वो कहाँ अटैच है? एप्सिलॉन कार्बन। जैसा मैंने आपको बताया था ना कि पहला कार्बन क्या हो जाएगा? अल्फा, फिर नीचे की तरफ काउंट करेंगे बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। एप्सिलॉन से क्या अटैच है? NH3+ यानी प्राइमरी अमाइनो ग्रुप। आर्जिनिन, आर्जिनिन में है ग्वानिडीनो ग्रुप। हिस्टेडीन में है इमीडेजोल चेन, और दैट इज़ वेरी आयोनाइजेबल साइड चेन। नाउ नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप तो दो ही हैं, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, दे हैव कार्बोक्सिलिक एसिड। यू कैन सी हियर सिंगल CH2 और सिंगल is there in aspartate and 2 CH2 are there in glutamate. Okay, the next classification is based on body requirement. That means amino acids how they required in for our body for the growth. Essential, non-essential and conditionally essential. What are essential amino acids? The amino acid which cannot be synthesized inside the body and we need them from outside in our diet. नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो सकते हैं और उन्हें हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या है? नॉन एसेंशियल है। अभी कंडीशनली इसेंशियल क्या है? एक्चुअली कंडीशनली इसेंशियल इज़ अ टाइप ऑफ नॉन एसेंशियल, लेकिन जब भी हम सिक होते हैं या जो ओल्ड पीपल्स होते हैं उनको वो डाइट में
देने पड़ते हैं क्योंकि हमारी बॉडी उन्हें सिंथेसाइज करना बंद कर देती है। ठीक है, तो समझ आया। इसेंशियल मतलब हमें बाहर से उन अमाइनो एसिड्स को लेना है क्योंकि हमारी बॉडी खुद उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती। नॉन एसेंशियल मतलब बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है। कंडीशनली इसेंशियल यानी जब हम इल होते, सिक होते, हमें कोई बीमारी हो जाती है या फिर बहुत ओल्ड जो पीपल्स होते हैं उनमें you have to give them from outside or in dietary. Example of essential amino acids are leucine, lysine, isoleucine, histidine, valine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan and arginine. Arginine जो है वो actually non essential amino acid है, पर arginine जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनको आपको डाइटरी सप्लीमेंट और डाइट में इंक्लूड करके देना चाहिए। सो एग्जांपल ऑफ नॉन एसेंशियल एलेनिन, आर्जिनिन, aspargine, aspartate, cysteine, glutamate, glycine, proline, tyrosine and serine. और कंडीशनली इसेंशियल सिस्टीन, ग्लूटामाइन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन, प्रोलिन, टॉरिन। हाइड्रोक्सीप्रोलिन और टॉरिन जो हैं वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस टाइप के अमाइनो एसिड्स है। अभी इतने सारे अमाइनो एसिड्स के नाम याद कैसे रखने हैं, तो मैंने उसके लिए एक फार्मूला बनाया जो आप नीचे देख सकते हैं। पहले मैंने उनके इनिशियल्स ले लिए LLIHVMPTT और इसको मैंने बना दिया है लिहेम वेप्ट। लिहेम वेप्ट, लिहेम वेप्ट याद रखना है बस। तो L फॉर क्या हो जाएगा, ल्यूसिन, लाइसिन। I फॉर आइसोल्यूसिन, H फॉर हिस्टेडिन, M फॉर मिथियोनिन, V फॉर वेलिन, P फॉर फिनाइलएलेनिन एंड T फॉर थ्रियोनिन, T फॉर ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो लिहेम वेप्ट याद रखना है इसेंशियल के लिए। नॉन इसेंशियल के लिए याद रखना है एक्टी-GGPS। तो एक्टी-GGPS में क्या होगा, एक्टी में A फॉर एलेनिन, आर्जिनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टेट, फिर C फॉर सिस्टीन, फिर T फॉर टायरोसिन। Y मैंने इसलिए लगाया कि TY, अभी आपने इसेंशियल में भी ये 2 T हैं, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, तो अब कैसे याद रखें ये कौन सा T है, तो याद रखना है TY कर दिया मैंने उसे, तो TY मतलब टायरोसिन। फिर G क्या है, ग्लाइसिन, G 2 बार G क्यों है, क्योंकि ग्लूटामेट, ग्लाइसिन। और P क्या है, प्रोलिन, S फॉर सिरिन। तो ऐसे याद रखना है, लिहाम वेप्ट फॉर इसेंशियल और एक्टी-GGPS जो कंडीशनली इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो हैं सिस्टीन, ग्लूटामाइन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन, प्रोलिन, टॉरिन। ये आसान है याद रखने के लिए क्योंकि सिस्टीन, ग्लूटामिन और प्रोलिन ही याद रखना है, बाकी हाइड्रोक्सीप्रोलिन और टॉरिन डिफरेंट है तो याद रखे जा सकते हैं। देन अनकॉमन अमाइनो एसिड्स, तो ये जो 4 हाइड्रोक्सीप्रोलिन और टॉरिन है दे आर कैटेगराइज्ड अंडर अनकॉमन अमाइनो एसिड्स। दे some other are 4 hydroxyproline, 5 hydroxylysine, methyl lysine, gamma carboxy glutamate, demosin, selenocysteine, ornithine एंड citrulline। ये जो रेड कलर से ये इनकी पोजीशन है, जैसे 4 हाइड्रोक्सीप्रोलिन जो है वो प्लांट सेल वॉल कोलेजन में है, 5 हाइड्रोक्सीलाइसिन कोलेजन प्रोटीन में है, मिथाइल लाइसिन मायोसिन में है, गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स में है, डेमोसिन इलास्टिन में है, सेलेनोसिस्टीन जो है उस ये एक्चुअली टाइप ऑफ सिस्टीन है जिसमें सल्फर की जगह पर सेलेनियम है। ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन वी ऑल नो इट इज़ द पार्ट ऑफ यूरिया साइकिल। So please like this video if you found it informative, and please subscribe my channel for further similar type of video tutorials, and please press this bell icon, then only you will get the notifications. Thank you very much.